Hello. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. You hope I'm audible, right? और सब कहाँ है जी? कुणाल? मैसेज कर दिए सर ग्रुप में। Okay. ठीक है. Okay, just we are going to discuss about how the metacentric height that will be calculated, right? ठीक है. तो today's topic is metacentric height calculations measurement करते हैं. ठीक है. Measurement of metacentric height, right? Metacentric. What is metacentric height? Do you know what is metacentric height? That is represented by m. Do you know or not? Okay. First is what? First is our experimental method. First is our experimental method. EXPERI. Experimental. Right. First is our experimental method, right? Okay. Just we are taking a object which are floating on the water surface, right? Okay. This is our object. Okay. This is our what? This is our object that are floating on the water surface, right? Water surface is this. This is the water surface. Can you take here? This is the water surface, right? This is the water surface. This is water surface, right? ठीक है. ध्यान से देखिएगा, right? ठीक है. A block is kept on this block. Another block is kept on the bigger block, right? ठीक है. ये इसके पास आपका कुछ weight होगा. It has a weight that is W and a small w. एंड इसके पास जो बड़ा वाला ब्लॉक है, बिग ब्लॉक के पास भी क्या है? W वेट है, कैपिटल W, दैट इज एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज W, एंड दिस इज द स्मॉल w, राइट? ओके. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू गिव एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट to this object, what will happen? The final positions of the object will be like this. You can draw, sorry, take the color black here. The final positions of this block will be like this. Okay, clear? Is it clear or not? ठीक है. Okay. ठीक है. Now just we are going to draw the free body diagram here. This is what? This is the water surface here.
This is the water surface. This is the water surface, right? This is water level body of the water. Clear? Suppose this block, this small block is the final position of the block will be here. ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से slide होके इस position को acquire कर लेगा, right? And having a distance, that is distance from the center line, that is the, ये आपका center line हो गया, this is the center line. Distance, suppose this is the x distance, right? About x distance पे क्या करेगा, ये displace कर गया, ठीक है, after tilting or after giving the angular displacement, right? ठीक है, angular displacement, suppose this is the angular displacement of theta, ठीक है, theta हम angular displacement दिए तो क्या कर गया, ये जो object हुआ that moves to a distance x, right, from the center of the object, right? ठीक है, center line, right? Okay, now just we are going to discuss, this is the W and this is what, this will be, suppose this is the center of gravity, the center, along center of gravity, which force will be acted, which force will be applied here, that will be here, that is the weight of the big object, right? ठीक है, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट का क्या वेट है, राइट? ठीक है, और ये मेटा सेंटर होगा, राइट? ठीक है, along which मेटा सेंटर, this is the मेटा सेंटर along which the buoyancy force will be acting, right? ठीक है, this is the FB, can you find here? This is the arm, right? ठीक है, and this angle, this is the angle theta angle is, this is the theta angle, this is the angular displacement. Right now just we are going to draw the center free body diagram, इसको अलग से हटा कर देखते हैं, ठीक है? This is the line, right? ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉ कर दो, ध्यान देना बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है? Suppose this is the point of W and this is the metacentric height, this is the metacenter, right? This is the metacenter, and this is the line along which W will be acted, right? W, that is the weight of the big object, right? ठीक है, that is the G here. This is what? This will be here force of buoyancy, right? Along which force of buoyancy will be acted along the metacenter, right? Clear? Clear or not? Is it clear or not? Yes, sir. Okay, ठीक है, अब क्या होता है कि देखो ये along this line we can take a body that is the weight having, yeah, this is the weight W, small w, the weight of the small object, that will be like this, right? ठीक है, or at a distance, that will be at a distance from the x axis, that is by the x distance, right? x distance से ये क्या करेगा, यहाँ पे ये फोर्स जो है एक्ट करेगा, राइट? ठीक है, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे इसका, तो यहाँ मेटा सेंटर से यहाँ से लो डिस्टेंस, राइट? ठीक है, दिस इज द perpendicular distance, suppose this is the distance, right? ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ से W एक्ट कर रहा है, स्मॉल w, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम, जस्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? जस्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ ओनली फ्री बॉडी डायग्राम राइट नाउ. This, look at this here, suppose this is the x, this is what, this is the x here, this is distance is x here, and this is the gm here, this is the distance that is gm here, right? ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, लुक एट द फिगर है, दिस इज द थीटा हियर, ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए आप, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, थीटा होगा ना, दिस एंगल विल बी थीटा, राइट? ठीक है, तो अब बताओ ये जी है, दिस इज द पॉइंट दैट इज बी डैश, ठीक है, बी डैश दैट है buoyancy, center of buoyancy, ठीक है, in the new position when the body is given the angular displacement, right? ठीक है, angular displacement, that is the theta displacement, right? ठीक है, okay, and this is the w, ठीक है. Now look at this figure, what will happen here, this is the एक ये फोर्स और एक ये फोर्स है,
और दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज व्हाट, GM। देखो ये GM है, तो यहाँ से आप ये GM, ये इसका आप क्या बोलते हैं, इसका बेस पे लोगे तो क्या आ जाएगा, GM cos थीटा लिख सकते हैं इसको। अब परपेंडिकुलर हम लेंगे तो क्या, GM sin थीटा लिख सकते हैं ना, GM sin थीटा। कैन वी राइट हियर, कैन वी राइट हियर और नॉट, कैन वी राइट हियर और नॉट, हेलो टेल मी, कैन वी राइट और नॉट। ये देखो GM है, ये वाला है, ये है क्या, ये डिस्टेंस, दिस इज द GM डिस्टेंस, राइट। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, दैट इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर दैट इज द हाइट आपको निकालना है, बेस का हाइट नहीं, ये हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट निकालना है, दैट इज टू बी गिवन बाय GM sin theta, right, and this will be base will be given by GM cos theta. Similarly this is also base, ठीक है, in the this right angle triangle, right, and x is the hypotenuse, so this length that will be given by how that will be given by x cos theta. Can we write, can we write or not, can we write or not, Raghuvansh, Dasarath, Kunal, Raja, can we write or not, hello, Right, sir. okay, very good. ठीक है, now just we are going to calculate the applied torque. What is the applied torque here? Applied torque is how much? Applied torque कितना है? Applied torque due to this object, ये ऑब्जेक्ट के कारण मेरे पास कितना आया, अप्लाइड टॉर्क, दैट विल बी इक्वल टू, देखो दैट विल बी इक्वल टू अलोंग दिस पॉइंट, ठीक है, अलोंग दिस लाइन होगा, अलोंग दिस लाइन, एंड दैट विल बी इक्वल टू W, स्मॉल W, that will be equal to a small w into distance, that is the distance here, ठीक है, ये आर्म का डिस्टेंस जो है, तो ये कितना दे, W into x into cos थीटा, राइट। ठीक है, अब रीस्टोरिंग कपल की बात करते हैं, रीस्टोरिंग कपल, सर ये वाला कैसे किए थे, W into x cos theta, W into x cos theta, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं तो क्या है, दिस इज द टॉर्क जनरेटेड बाय दिस एक्स्ट्रा W, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क, दैट इज द अप्लाइड टॉर्क। जस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई ए टॉर्क बाय यूजिंग दिस एलिमेंट और प्लेसिंग द दिस ऑब्जेक्ट ऑन द ऑफ द बोट, ठीक है, सपोज दिस इज अ बोट है, ठीक है, ये बोट पे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, व्हेन द पोजीशंस विल बी लाइक दिस, ठीक है, व्हेन देयर विल बी ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी दिस, और ड्यू टू दिस पोजीशंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट देयर विल बी ए एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क, ठीक है, दैट टॉर्क इज कैलकुलेटेड हियर, ठीक है। How much the calculated torque will be, W into x cos theta, ठीक है। तो this is the x distance from center of axis, देखो यहाँ पे देखो, इस फिगर में देखिए, तो यहाँ से x डिस्टेंस है, राइट, ठीक है, तो मान लो कि ये x डिस्टेंस है, दिस इज द थीटा, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, दैट इज दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी x into this is the angle 90 degree, this distance will be how much, this distance will be x cos theta, and this perpendicular distance will be x sin theta, right, can you tell, am I right or not? yes sir. Okay, very good, ठीक है। तब यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से जस्ट हम फाइंड करते हैं, अब रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी ड्यू टू द कपल फॉर्म्ड बाय द weight and the buoyancy forces, ठीक है, weight of the boat and the buoyancy forces, ठीक है, तो ये कपल फॉर्म कर रहा है कौन, देखो दिस इज द कपल फॉर्म्ड बाय द buoyancy forces, that is FV, and this is how much, GM into sin theta, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस। तो कपल हम कैसे निकाल सकते हैं, कपल को निकाल सकते हैं, कपल दैट इज W इज द weight of that object, W into GM sin theta, right, ठीक है। For equilibrium condition, what will happen, for equilibrium conditions the both couple will be same, right, both couple will be same, ठीक है, counter clockwise couple, that will be equal to
क्लॉकवाइज कपल। ये क्या है? दिस इज द क्लॉकवाइज कपल, क्लॉकवाइज कपल है ये, एंड दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज कपल, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज टॉर्क, राइट। ठीक है, द फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर equilibrium condition, what will happen? Can we write here W into gm into sin theta, that will be equal to a small w, that is the weight of the smaller object, into x into cos theta. Okay, so we have to find the value of gm because gm is nothing, gm is the metacentric height. ठीक है, gm is the metacentric height। ठीक है, कहां से कहां तक? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर, ये डिस्टेंस होता है, दैट इज द gm। that will be calculated by using the formula, that is w into x dividing by, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल W इंटू, यहाँ पे देखो cos थीटा डिवाइडिंग बाय sin थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा, राइट। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड द measure the manometric height experimentally, right? ठीक है, this is the required formula here. Is it clear or not? Is it clear or not? Is that clear or not? यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, is there any doubt? ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्या है मेरे पास? दूसरा मेरे पास पहला और क्या हो गया मेरे पास? एक्सपेरिमेंटल मेथड, एंड अनदर इज एनालिटिकल मेथड। ठीक है, ANALYTI, एनालिटिकल मेथड, राइट। दिस इज द एनालिटिकल मेथड, राइट। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल मेथड? जस्ट वी आर गोइंग टू डील बाय दिस, राइट। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में क्या होता है? जस्ट मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन बाय, can write here metacentric height, that is the metacentric height. What is metacentric height? That is the that is BM. ठीक है, that is BM, that is the buoyancy to metacenter, right? ठीक है, that will be given by, you know that I least is the moment of inertia dividing by the volume of fluid displaced. ठीक है, where I least is what? Is the moment of inertia. ठीक है, this is the least moment of inertia along water surface. ठीक है, दिस इज द लीस्ट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the water surface. अभी समझाएंगे सब। ठीक है, and VFD was what? VFD is nothing, it is the volume of fluid displaced. ठीक है, this is the volume of fluid displaced. Is it clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Is it clear or not? हेलो हेलो, Yes sir. फिर से बता दिए सर मेथड। देखो ये मेरा एनालिटिकल मेथड है, हमारे पास फॉर्मूला पता है। ठीक है, मेटा सेंटर हाइट को जस्ट क्या करेंगे हम निकालने के लिए? मेटा सेंटर हाइट दैट इज BM। ठीक है, B to M। ठीक है, हम देखो याद करो कि अंडर स्टैटिक कंडीशन, ठीक है, स्टैटिक आपका क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हम बात किए थे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हम बात किए थे, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास आया था? दैट इज द आवर G एंड दिस इज आवर B
एंड दिस इज आवर, सपोज दिस इज आवर एम, दिस इज आवर एम, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या था मेरे पास कि यदि मान लो कि एम विल बी above G, in that case we can say that the system is under a stable equilibrium. Okay, in this case we can also say that bm is greater than bg, ठीक है। देखो bm मतलब क्या होगा, दिस इज द डिस्टेंस bm, ठीक है। bm is greater than the value of bg, okay, this is the value greater than the bg, ठीक है। this is bg and this is bm. In that case also we have discussed about a formula, and that formula is nothing, that is the gm is equal to bm minus bg. याद करो लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। gm is equal to, that is gm is what, gm is this value that will be given by total value, that is the bm minus bg, ठीक है। bm माइनस bg। अब हमें क्या है, bm का वैल्यू का पता है, bm वैल्यू हमें पता है, राइट, ठीक है। जस्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ gm, ठीक है। तो gm का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, gm वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू bm। bm क्या है यहाँ पे, I list, LEAST, I list dividing by VFD, that is the volume of fluid that is displaced minus bg, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर कैलकुलेशंस ऑफ द gm, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। पहला फॉर्मूला gm कैलकुलेट करने का क्या हो गया मेरे पास, देखो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग gm वैल्यू एक्सपेक्टेड, ये वाला नहीं सर, अभी जो फिर से एक और वाला फॉर्मूला बताए थे ना, ये वाला सर, बॉक्स वाला। ओके, ठीक है। तो ये देखो आपका क्या है, दैट इज जीएम हैव टू बी कैलकुलेटेड, राइट। हमको क्या करना है, जीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। फ्रॉम जी टू एम डिस्टेंस, जी टू एम दैट डिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो अंडर स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशंस की हम बात करते हैं, दैट इज अंडर स्टडी कंडीशंस, ठीक है। स्टडी इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करते हैं, तो उस समय देखो यही पोजीशंस है ना, दैट इज द पोजीशंस ऑफ बी हियर, दैट इज द पोजीशंस ऑफ जी हियर एंड दिस इज द पोजीशंस ऑफ एम हियर। याद आया, लास्ट क्लास में बताया था ना, अंडर फ्लोटिंग बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यही आया था ना केस, आया था ना। और हमने फार्मूला ये लिखा था, जीएम इज इक्वल टू क्या, बीएम माइनस बीजी किए थे, जीएम इज इक्वल टू बीएम माइनस बीजी। याद आया? यस सर। याद आया? ओके, वेरी गुड। यदि याद आया तो बहुत अच्छा। अब जीएम क्या है, जीएम हमें निकालना है, बीएम का वैल्यू हमको एनालिटिकल पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीएम हियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीएम हियर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बीएम हियर, you can get the formula like this, ठीक है। by using this formula we can calculate और डिजाइन द शिप, ठीक है। यदि किसी शिप को डिजाइन करना है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है। रोलिंग एंड पिचिंग मोशन समझ में आता है, समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, फटाफट बताइए। नहीं समझ में आता है तो आगे बढ़िए, ठीक है। जस्ट वी आर गोइंग टू डिजाइन अ शिप हियर, ठीक है। कोई शिप हम डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, मेरे पास कितना टाइप का मोशन होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार। देखो एक शिप है, ठीक है, एक शिप, मान लो दिस इज द शिप हियर, ठीक है। चलो ये शिप है मेरे पास, ठीक है, तो सीधा शिप है, राइट, ठीक है। इसमें कुछ सामान वामान भी रखते हैं, राइट, ठीक है। कार्गो शिप, इस इन द कार्गो शिप है, राइट, इस द कार्गो,
ठीक है, फिगर अच्छा अपना नहीं पढ़ना पता नहीं, ठीक है। तो कंसेप्ट हमें समझना है, राइट, ठीक है। दिस इज द एक्सिस हियर, सपोज दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द एक्सिस हियर, राइट, ठीक है। इस पे क्या क्या हमें फोर्स लगता है? फर्स्ट वन इज यू कैन से हियर, फर्स्ट वन इज दिस इज द फोर्स हियर, दैट इज द एक W लगेगा, दैट इज द वेट ऑफ द शिप, ये दैट क्या इज द चीज G, बता रहे हैं सर? ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जस्ट देखो ये हम बता रहे हैं सेंटर सॉरी मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए, ठीक है। मेटासेंट्रिक हाइट का क्या इंपॉर्टेंस है जस्ट वो बताएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, राइट, ठीक है। तो यहाँ ये शिप है, ठीक है। अब शिप के पास क्या क्या एक्सिस है? मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस, राइट, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंटर ऑफ बायंसी, राइट, ठीक है। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू this is the front view, right, front view, and this is the side view। अभी क्लास है क्या आप लोग का? अभी क्लास है आप लोग का? हेलो, ठीक है। दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द, सपोज दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू है, राइट, ठीक है। ये मेरे पास सीप है, ठीक है, क्लियर है। दिस इज द सीप हियर, राइट, ठीक है। ये सीप है हमारे पास which is floating on the water surface, ठीक है, which is floating on the water surface। This is the water surface, this is the water surface under which the sheep are floating here, right, ठीक है। This is the water surface under which the sheep are floating here, clear यस सर। clear or not? Okay, ठीक है। This is the sea power, right, ठीक है। Okay, now we are going to draw the dimensions, right, ठीक है। This is the dimensions, that is your D, this is what, this is the dimensions, that is your D here, this is the D, that is the इसका आपका लंबाई है, that is D here, okay, and this is the चौड़ाई, that is B here। ये क्या है मेरे पास? B है, राइट, ठीक है। जस्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, देखो यहाँ पे कुछ मोशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कितने टाइप का मोशंस होते हैं? तो एक इसके पास हो जाएगा, देखो अलोंग दिस लाइन, दिस इज द लाइन पैरेलल, दिस एक ये लाइन हो गया और ये एक्सिस हो गया, राइट, ठीक है। तो जब भी ये आपका जो देखो ये लाइन और ये इसके अलोंग जब रोल करेगा और इसके अलोंग क्या करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, राइट, ठीक है। तो व्हेन द शिप विल रोटेट और ऑक्सीलेट along this line or along this axis, the motions will be known as our rolling, ठीक है। ship is rolling condition, ship is under rolling conditions, ठीक है। जब भी यहाँ आपका एक होता है एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड अनदर इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। This is the longitudinal axis and this is the transverse axis of the ship, right, ठीक है। तो when the ship is oscillating about the longitudinal axis, that motion is known as our rolling motion of the ship, right, and when the ship is rolling or oscillating about the transverse axis, that motion is known as our pitching, P-I-T-C-H-I-N-G, that is known as a pitching, ठीक है। और एक और मोशंस होता है, दैट मोशंस वेरी परपेंडिकुलर अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो होगा आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी, सपोज कि दिस इज द एक्स एक्सिस, हमने जो कहा था एक्स एक्सिस के बाद जो इसका मूवमेंट होगा दैट इज नोन एज आवर स्टीयरिंग, ठीक है। स्टीयरिंग जो होता है आपका लेफ्ट या राइट मूव करता है शिप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग बोलते हैं। जो हम फोर व्हीलर में क्या है, स्टीयरिंग रहता है, क्यों स्टीयरिंग रहता है, हमको डायरेक्शन चेंज करने के लिए, हम लेफ्ट जाना या राइट जाना है, that will be decided by क्या, स्टीयरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप का मोशंस हम देखते हैं, ठीक है। तो जस्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द
least moment of inertia, that is the least moment of inertia, that is gm is equal to nothing, it is equal to I into least dividing by vfd, that is the fluid distance minus bm. For that we have to calculate the value of I minimum, that is the area moment of inertia, and that should be along the surface of the water, ठीक है, that is the surface of the water, along this surface, right, ठीक है, along this surface, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मेरे पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक आएगा along आई पिचिंग, ठीक है, along आई पिचिंग के अबाउट आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है d एंड b दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे b इंटू डी क्यू बाई 12 and along I पिचिंग एक्सिस के बाद along r रोलिंग एक्सिस के बाद क्या हो जाएगा, that is the bq into d dividing by 12। ओके, याद है ना फॉर्मूला, याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है? किस चीज का? इनर्शिया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, area moment of inertia of a rectangular surface, this is the d here, ठीक है, ये d है और ये क्या है यहाँ पे, सॉरी b है, ठीक है, this is the b and d, ठीक है। तो when you are going to calculate the आपका x axis के बाद, this is the x axis, तो आपका I क्या हो जाएगा, I along x axis that will be equal to b into dq by 12, ठीक है। और यदि आप इस एक्सिस के बाद कैलकुलेट करोगे, सपोज दिस इज द y एक्सिस, तो I y क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू bq into d डिवाइडिंग बाय 12। याद आया कि नहीं आया यार, ठीक है। तो ये आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। तो अब इसमें से बताइए कौन सा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, आईपी और आईआर, विच एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर। देखो तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू डी इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, डी का पावर यहाँ पे 3 है, आई पी विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ आई आर, ठीक है, आई पी विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ आई आर, बट वी हैव टू चूज द लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएम, ठीक है। तो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन से हियर GM is equal to nothing IR dividing by VFD minus BM, ठीक है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, GM दैट इज द मेटासेंट्रिक हाइट, राइट, ठीक है। तो इसी तरीका से हम यदि मान लो आईपी के लिए करेंगे, तो आईपी के लिए हम करेंगे तो वी विल आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ GM का वैल्यू, ठीक है। तो दैट विल बी हायर देन द वैल्यू ऑफ, इन दैट केस GM फॉर द पिचिंग केस दैट विल बी इक्वल टू GM दैट इज द मेटासेंट्रिक हाइट इन केस ऑफ रोलिंग, ठीक है। तो इस कंडीशंस में, जो पिचिंग कंडीशंस में होगा, जो GM का वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द GM वैल्यू इन केस ऑफ रोलिंग मोशंस, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, ठीक है, सो दैट वी कैन डिजाइन अ शिप हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर मोर, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं क्या, कि जितना ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा कोई भी आपका शिप, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मेटासेंट्रिक हाइट होने से क्या होता है, देयर विल बी ए ऑक्सिलेशंस, ठीक है, मोर ऑक्सिलेशंस विल बी देयर, सो दैट द पैसेंजर विल नॉट फील कंफर्टेबल इनसाइड द शिप, ठीक है। तो यदि मान लो कोई पैसेंजर बैठा हुआ है शिप में, तो उसको कंफर्टेबल नहीं फील होगा यदि मेटासेंटर हाइट आप ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है। इसीलिए शिप का डिजाइन जो करते हैं, पैसेंजर शिप का डिजाइन करते हैं, उसका मेटासेंट्रिक हाइट जो रहता है कम से कम एटलीस्ट आपका रहता है क्या, मेटासेंट्रिक हाइट, दिस कंडीशंस पे डिजाइन होता है, दैट इज द मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग मोशन, ठीक है। कम से कम इतना रखना पड़ेगा, तब मेरे पास शिप जो है बैलेंस कंडीशन में रहेगा। अदरवाइज यदि इससे आपका कम हो जाएगा तो शिप विल बी क्या हो जाएगा, शिप विल बी सिंक इनसाइड द वाटर,
शिप क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो कम से कम मेरा मेटासेंट्रिक हाइट कितना रहना पड़ेगा, कम से कम रोलिंग केस के जो मेटासेंट्रिक हाइट होता है उसके बराबर हमें रखना होगा कम से कम। ठीक है, लेकिन मेटासेंट्रिक हाइट हम बढ़ा सकते हैं, तो मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ाने से क्या होगा और घटाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा समझ में आया। यदि इस वैल्यू से कम आप मेटासेंट्रिक हाइट ले जाओगे, यदि रोलिंग के केस में जो हमने मेटासेंट्रिक हाइट निकाल रखा है उससे यदि कम में ले जाओगे तो शिप क्या करेगा, शिप डीप कर जाएगा, मतलब कि वाटर के अंदर वो क्या करेगा, सबमर्ज कर जाएगा, शिप डूब जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको शिप को क्या करना है, फ्लोट कराना है, तरवाना है उसको वाटर सरफेस में। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मेटासेंट्रिक हाइट